So today I will start from part 6, that is from page number 92. So the conversation between Caliban and Prospero was going on. Miranda is also present in the scene, though she is keeping quiet, but as we can see the conversation between Caliban and Prospero, we can understand that Caliban is not at all a trustworthy slave of Prospero. And the reason of Caliban's hatred against Prospero is that Caliban feels that Prospero has cheated him and has taken his island which he inherited from his mother Sycorax. You have also studied the history of Sycorax and the punishment given by Sycorax to Ariel. Ariel is also promised freedom, but Caliban is not ready to follow the command of Prospero. When Prospero threats him to punish him, then he gets ready. And he says, "No, pray thee, I must obey. His art is of such power, it would control my dam's god Setebos." Dam means mother. लेकिन कैलिबन जो है वो काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट करने के बाद रेडी हो जाता है ड्यूटी करने के लिए, और क्या बोलता है कि मुझे प्रॉस्पेरो को ओबे करना पड़ेगा बिकॉज हिज आर्ट मीन्स मैजिक. सो प्रॉस्पेरोज मैजिकल पावर इज सो ग्रेट that it can control Setebos. Setebos is god of Sycorax, and make a vassal of him. Vassal means servant. And definitely Prospero is so rich in his magical power that he might make Setebos his slave. तभी एरियल की एंट्री हो जाती है और कैलिबन की एग्जिट हो जाती है. एरियल जो है वो मरमेड के रूप में है और इट इज़ इनविजिबल, विजिबल ओनली टू प्रॉस्पेरो, प्लेइंग एंड सिंगिंग. फर्डिनेंड इज फॉलोइंग हिम. फर्डिनेंड क्यों उसी स्ट्रेंज कॉर्नर पे अपने आप को रेस्क्यू करता है आइलैंड पे, और अब फर्डिनेंड जो है वो फॉलो कर रहा है एरियल की म्यूजिक को. एरियल को देख भी नहीं पा रहा है और वंडर कर रहा है कि इस डिजर्टेड आइलैंड पे कहाँ से इतनी ब्यूटीफुल म्यूजिक आ रही है. Ariel song. Come unto these yellow sands and then take hands, courtesied when you have had and kissed the wild waves whilst footed featly here and there. तो ये सॉन्ग का मीनिंग ये हुआ कि the one who has taken a step on the island can come and touch the golden sands, can take it hand in hand, and when you can see the stormy waves, when you can enjoy the beauty of this island's stillness, then you can dance here and there, and there are so many delicate spirits which are listening to the song. तो क्योंकि आइलैंड पे कोई ह्यूमन बीइंग का इनहैबिटेशन नहीं है, देर आर ओनली टू प्रॉपर ह्यूमन बीइंग्स, वन इज प्रॉस्पेरो एंड अनदर इज मिरांडा. तो पूरा आइलैंड जो है इट इज फुल ऑफ स्पिरिट्स. ठीक है. फीटली मीन्स ग्रेसफुली और फुट का मतलब है डांस. बर्डन मीन्स रिफ्रेन. हार्क मीन्स लिसन. बर्डन स्पेशली विद बो वाव द वॉच डॉग्स बाग. और ये जो है वो कोरस का सॉन्ग है, यानी कि जो बाकी के स्पिरिट्स हैं, जो स्लेव स्पिरिट्स एरियल के हैं, वो सारे जो है वो फॉलो कर रहे हैं एरियल के सॉन्ग को. एंड फर्डिनेंड इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक बिकॉज फर्डिनेंड कुड नॉट सी एनीबडी. ही इज ओनली लिसनिंग टू द म्यूजिक एंड द म्यूजिक हैज मैजिकल इफेक्ट. ही इज फॉलोइंग एरियल. फर्डिनेंड, वेयर शुड दिस म्यूजिक बी, इन द एयर और द अर्थ. अब फर्डिनेंड स्पेक्यूलेशन लगाता, आइडिया लगाता और बोलता है कि कहाँ से म्यूजिक आ रही, क्या एयर से आ रही है या फिर इट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड द अर्थ. It sounds no more. All of a sudden the music stops, and sure it waits upon some god of the island sitting on the bank weeping again the king my father wrecked. This music crept by me upon the waters, allaying both their fury and my passion. Ferdinand आगे जो है वो क्या बोल रहा है कि when I am sitting here, ठीक है, waiting for the rest of the fleet of the ship, and so definitely this song is sung by the god of the island. And when I am weeping, when I am expressing my sorrow for my father who must have lost his life in the shipwreck, so this music is passing into my body, my soul, and it is calming. It is making me quiet against my fury and my sufferings. तो मेरा जो एंगर है, जो एग्नी है और जो पेन है, उसको काम कर रही है ये म्यूजिक. With its sweat air, so such is the fine tune of this music. Thence I have followed it, or it hath drawn me rather, but 'tis gone. और ये म्यूजिक को ही मैं फॉलो कर रहा हूँ, बट नाउ इट इज स्टॉप्ड. फिर धीरे से म्यूजिक स्टार्ट होती है. एरियल को लग रहा है कि उसका जो प्लान है वो वर्क कर रहा है, तो एरियल अगेन स्टार्ट्स सिंगिंग.
full fathom 5 thy father lies. एरियल के सॉन्ग में पहली लाइन में क्या है कि your father is sleeping 5 fathom deep at the bottom in the sea. Fathom is एक तरह की यूनिट है जिससे सी की जो डेप्थ है वो मेजर किया जाता है. तो वो बोल रहा है कि नाउ योर फादर इज लाइंग फुल 5 fathom deep into the sea. Of his bones आर कोरल मेड. और अब तक तो उनकी बोन्स जो है वो कोरल में कन्वर्ट हो गई होंगी. तो फर्डिनेंड की ये एक इम्पॉर्टेंट स्पीच है पूरे प्ले में. आपको टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सीन, ये एक्ट 1 सीन 2 में आपको ये दिखेगा कि फर्डिनेंड ने बहुत ज़्यादा नहीं बोला है इसमें, लेकिन इस स्पीच में उसने इतना बता दिया है कि वो आइलैंड पे आने के बाद अपने फादर ये इमेजिन कर रहा है कि उसके फादर की शिपरेक में डेथ हो गई है. Then the song of Ariel continues. Those are pearls that were his eyes. और जो आपके फादर की आईज हैं वो अब तक क्या हो गई होंगी? पर्ल्स बन गई होंगी. Nothing of him that doth fade but doth suffer a sea change. तो कोई भी पार्ट आपके फादर की बॉडी का फेड नहीं हुआ है, डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, रॉटन नहीं हुआ है. इनफैक्ट इट इज चेंज्ड, ट्रांसफॉर्म्ड in the sea water into something rich and strange. और वो जो change है that is not for the bad but for the richness and strangeness. Sea nymphs early ring his neck. And who are ringing the death bell of Alonso's death? That is mermaids, sea maids. Hark now I hear them ding dong bell. और तभी म्यूजिक स्टार्ट होती है. Ferdinand, the ditty doth remember my drowned father. ditty का मतलब होता है सॉन्ग, और remember means reminds. There is no mortal business nor no sound that the earth owes. अब फर्डिनेंड और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस गाने में तो उसके फादर की डेथ का रेफरेंस हो रहा है. सो ही सेज दैट दिस सॉन्ग इज रिमाइंडिंग मी अबाउट माई ड्रोन्ड फादर एंड दिस कैन नॉट बी अ ह्यूमन बिजनेस. तो ये किसी ह्यूमन माइंड की बात नहीं है, और कोई भी साउंड और कोई भी अर्थ का रहने वाला जो है वो ऐसे किसी का ग्रीफ, किसी की सौरो या किसी के बारे में जान नहीं सकता है. I hear it now above me, the fringed curtains of thy eyes advance. and फिर उसके बाद वो सॉन्ग को और धीरे धीरे सुनने लगता है. तो प्रॉस्पेरो जो है, जो दूर खड़ा है, वो मिरांडा को देख करके रियलाइज कर लेता है दैट मिरांडा इज चार्म्ड बाय द यूथ ऑफ फर्डिनेंड. मिरांडा कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो जाती फर्डिनेंड से. प्रॉस्पेरो इज वेरी हैप्पी बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ द प्लान. फ्रिंजेड का मतलब होता है, फ्रिंजेड कर्टन्स मीन्स आई लैशेज. सो द आई लैशेज ऑफ योर आईज आर ओपनिंग एंड सेइंग व्हाट यू कैन सी एट द डिस्टेंस. मतलब यू आर गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स फर्डिनेंड. व्हाट इज इट? ये मिरांडा की पहली स्पीच है फर्डिनेंड को लेकर के. उसने बोला कि व्हाट इज इट? अ स्पिरिट लॉर्ड हाउ इट लुक्स अबाउट. तो सबसे पहले मिरांडा जो है वो फर्डिनेंड को ह्यूमन बीइंग नहीं समझ रही है, एक स्पिरिट समझ रही है, क्योंकि उसने अब तक स्पिरिट्स ही देखी हैं आइलैंड पे. Lord, how it looks about. Believe me, sir, it carries a brave form. Brave form means noble look. So the look of this spirit is very, very great, but it is a spirit. But definitely this is an angel. Prospero, no wench. Wench means woman. It eats and sleeps and hath such senses as we have such. लेकिन Prospero ने confirm किया that this youth is a human being and he also eats and sleeps like us. This gallant which thou seest was in the wreck. आगे बताया कि ये जो गैलेंट, ये जो यूथ तुम देख रही हो, this brave youth was also present in the ship which has been destroyed by the tempest, but he is something stained with grief, that's beauty canker. Thou mayest call him a goodly person, and he is more good looking than he appears to be. And right now, because he is suffering with the grief, with the loss of his father, so that is the reason why his youth is appearing to be little destroyed. तो कैंकर जो है वो यहाँ पे वर्म एक मेटाफर है, उसके लिए यूज हो रहा है, और कभी कभी जो वीड्स होते हैं उनके लिए भी यूज होता है. तो ग्रीफ जो है वो एक कैंकर का काम कर रही है, और अभी जितना फर्डिनेंड गुड लुकिंग है उतना नहीं दिख रहा है. और वो ग्रीफ क्या है? वो अपने फादर के डेथ के बारे में सोच रहा है. नहीं तो यू कैन कॉल हिम अ गुडली पर्सन. गुडली मीन्स हैंडसम. ही हैथ लॉस्ट हिज फेलोज. दूसरा ग्रीफ क्या है? उसके कंपेनियंस जो शिप में थे वो भी सब they have also lost, and strays about to find them. So he is moving on this island to find his companions. Miranda, I might call him a divine thing. तो पहली बार मिरांडा ने स्पिरिट बोला, दूसरी बार फर्डिनेंड को डिवाइन थिंग बोला. डिवाइन थिंग मतलब a creature who is directly connected to God.
For nothing natural I ever saw so noble. So Miranda has seen only one human being, that is his father, her father, and the other human being is she herself. तो मिरांडा बोल रही है कि I have never seen on this island such a divine thing. Prospero aside, it goes on मतलब का my magic is working. तो Prospero ने जिस पर्पस से ये प्लान एरियल के साथ मिलके किया और एरियल को इनविजिबल मरमेड बनाया, निम्फ बनाया, तो प्रॉस्पेरो को लग रहा है कि उसका मैजिक वर्क कर रहा है, बिकॉज मिरांडा इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स फर्डिनेंड. एज माई सोल प्रॉम्प्ट्स इट, स्पिरिट फाइन स्पिरिट. और ये किसको अप्रिशिएट कर रहा है? एरियल को, कि यू आर अ वेरी गुड स्पिरिट, आई विल फ्री दी विद इन 2 days फॉर दिस. और फिर से प्रॉमिस कर रहा है एरियल को कि 2 दिन के बाद जब ये सारा बिजनेस जो है वो प्लान फुलफिल हो जाएगा प्रॉस्पेरो का, तो एरियल को वो फ्रीडम दे देगा. फर्डिनेंड, मोस्ट श्योर द गॉडेस ऑन हुम दीज एयर्स अटेंड. एयर का मतलब यहाँ पे म्यूजिक है और अटेंड का मतलब प्लेड है. वाउशेफ माई प्रेयर्स, वाउशेफ मीन्स अलाउ me to ask something from you, may know if you remain means live upon this island, and that you will some good instruction give how I may bear here. तो जिस तरह से मिरांडा जो है वो फर्डिनेंड को देख के शॉक्ड हो गई, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में कभी इतना ब्रेव गुड लुकिंग यूथ नहीं देखा है, ह्यूमन बीइंग नहीं देखा, उसने सिर्फ स्पिरिट्स को देखा है, कैलिबन को देखा है, अपने फादर को देखा है आइलैंड पे. तो फर्डिनेंड ने भी जो है वो मिरांडा जैसी इनोसेंट ब्यूटीफुल गर्ल को नहीं देखा है. तो उसने फर्डिनेंड को डाउट क्या हुआ कि ये जो म्यूजिक चल रही थी अभी, ये डेफिनेटली ये गॉडेस है आइलैंड की, एंड शी मस्ट बी सिंगिंग द सॉन्ग. तो उससे क्वेश्चन पुट अप करता है कि मे आई नो वेदर यू लिव अपॉन दिस आइलैंड, ठीक है, और बी ग्रेशियस इनफ टू टेल मी हाउ आई शुड कंडक्ट माई सेल्फ हेयर, कि क्या आप इसी आइलैंड की गॉडेस हैं, तो मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए. माई प्राइम रिक्वेस्ट विच आई डू लास्ट प्रोनाउंस इज ओ यू वंडर इफ यू बी मेड और नो. और लास्ट क्वेश्चन उससे क्या करता है कि आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क वन फाइनल क्वेश्चन कि वेदर यू आर मेड बाय गॉड और यू आर एन अनमैरिड गर्ल. तो मेड का मतलब हो गया अनमैरिड गर्ल और वंडर का मतलब मेड बाय गॉड. मिरांडा, नो वंडर सर बट सर्टेनली अ मेड. तो मिरांडा उसके क्वेश्चन को क्वेश्चन का रिप्लाई करती है और बोलती है कि नो आई एम नीदर स्पिरिट बट आई एम नॉट अ स्पिरिट, नीदर आई एम मेड बाय गॉड बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग एंड आई एम नॉट मैरिड येट. फर्डिनेंड शॉक्ड हो जाता है क्योंकि मिरांडा जो है वो फर्डिनेंड की लैंग्वेज बोल रही है, ठीक है. तो आपको तो पता है कि मिरांडा आइलैंड पे आने के बाद प्रॉस्पेरो ने ही उसको ट्यूटर बन के उसको सब सिखाया था, पढ़ाया था. तो दैट इज द रीजन वाई मिरांडा प्रॉपरली बिहेव्स लाइक एन एजुकेटेड गर्ल. माई लैंग्वेज हेवेंस, आई एम द बेस्ट ऑफ देम दैट स्पीक दिस स्पीच वर आई बट वेयर टिस स्पोकन. अब फर्डिनेंड जो है बोलता है गुड गॉड यू कैन स्पीक माई ओन लैंग्वेज, आई एम द नोबलेस्ट ऑफ दोज हु स्पीक दिस लैंग्वेज. बेस्ट का मतलब आप समझिए, जो किंग होता है, ठीक है, उसके लिए बेस्ट वर्ड यूज किया जाता है. तो फर्डिनेंड को अब तक ये लग रहा है कि उसके फादर की डेथ होने के बाद नेपल्स का सेकंड किंग कौन हो जाएगा. आफ्टर अलोंजोज डेथ डेफिनेटली फर्डिनेंड विल बी डिक्लेयर्ड एज द किंग ऑफ नेपल्स. और ये नेपोलिटन लैंग्वेज बोल रही है मिरांडा जो है, तो वो उससे बोलता है कि यू आर स्पीकिंग द लैंग्वेज ऑफ द कंट्री वेयर आई एम सपोज टू बी द बेस्ट ऑफ देम, नोबलेस्ट किंग, ठीक है, हाउ द बेस्ट. तो प्रॉस्पेरो जो है वो और भी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि हाउ कैन दिस मैन कॉल हिमसेल्फ द नोबलेस्ट, क्योंकि ये तो बात सिर्फ प्रॉस्पेरो को पता है दैट अलोंजो इज अलाइव, लेकिन फर्डिनेंड सोच रहा है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है. और प्रॉस्पेरो को ये भी पता है कि अलोंजो और बाकी की जो रॉयल पार्टी मेंबर्स है, आप आगे के सीन में देखेंगे कि वो सब आइलैंड के दूसरे पार्ट पे सबने रेस्क्यू कर लिया है. तो अलोंजो बोल रहा है कि ये कैसा सन है जो अभी से अपने फादर को डेड भी मान रहा है और ये भी मान रहा है कि इसको ही किंग बनना है. फर्डिनेंड, अ सिंगल थिंग एज आई एम नाउ दैट वंडर्स टू हियर दी स्पीक ऑफ नेबल्स. लेकिन फर्डिनेंड आगे बोलता है कि आई एम वेरी वेरी शॉक्ड दैट you are speaking my language and I belong to the country of Naples and I am left alone on this island. तो फर्डिनेंड को ये लग रहा है कि शिप जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है पूरी तरह से और अब फर्डिनेंड अकेले बचा है जो इस आइलैंड पे रेस्क्यू ले चुका है.
He doth hear me and he doth weep, myself am Naples, who with my eyes never since at ebb beheld the king my father wrecked. अब फर्डिनेंड अपना सौरो जो है वो एक्सप्रेस कर रहा है फादर और डॉटर दोनों के सामने, यानी कि प्रॉस्पेरो मिरांडा के सामने, और बोल रहा है कि आई एम इन वेरी वेरी सैड बिकॉज विद माई ओन आईज आई हैव विटनेस्ड द डेथ ऑफ माई फादर, ही इज ड्रोन्ड इन दिस शिपरेक. तो मिरांडा इज फीलिंग वेरी पिटी and expressing her mercy for Ferdinand's grief. Yes, Faith, and all his lords, the Duke of Milan and his brave son being twain. अब Ferdinand ये भी बोलता है कि believe me that the other people who died along with my father, they are the Duke of Milan and his handsome son and the other two who have perished. Perished, twain का मतलब perished. तो एंटोनियो की भी डेथ हो गई, सेबेस्टियन की भी डेथ हो गई, वो सबको, और ड्यूक ऑफ मिलान तो एंटोनियो ही है फर्डिनेंड के ओपिनियन में, मतलब फर्डिनेंड को जितना पता है. तो प्रॉस्पेरो को हंसी आ जाती है, थोड़ा सा ये कॉमेडी वाली सीन है, क्योंकि प्रॉस्पेरो इज द रियल ड्यूक ऑफ मिलान, और प्रॉस्पेरो ने अपने चीटर ब्रदर को टीच करने के लिए ही ये टेम्पेस्ट क्रिएट किया है. तो प्रॉस्पेरो ने क्या बोला, एंड हिज मोर ब्रेवर डॉटर कुड कंट्रोल दी इफ नाउ इट वर फिट टू डू इट. उसने बोला अगर ये सूटेबल टाइम होता तो मैं डिस्क्लोज कर देता दैट आई एम द राइटफुल ड्यूक ऑफ मिलान एंड शी इज माई डॉटर एंड बोथ ऑफ अस आर अलाइव ऑन दिस आइलैंड. At the first sight they have changed eyes, delicate area, I'll set thee free for thee. और एरियल के इस पूरे जो एग्जीक्यूशन किया एरियल ने अपने सॉन्ग का, और जिस तरह से फर्डिनेंड जो है वो चार्म्ड हो गया, तो प्रॉस्पेरो का प्लान सक्सेसफुल हो गया, और प्रॉस्पेरो जो है वो एरियल से फिर से प्रॉमिस कर रहा है दैट आई विल फ्री यू इन नेक्स्ट 2 days. और फर्डिनेंड को देख के क्या बोल रहा है, अवर्ड गुड सर, आई फियर यू हैव डन योरसेल्फ सम रॉन्ग. और प्रॉस्पेरो फर्डिनेंड को अब इम्प्रिजनमेंट में लेगा और उसको कैद करेगा, क्योंकि प्रॉस्पेरो नहीं चाहता कि फर्डिनेंड जो है वो, मतलब फर्डिनेंड एंड मिरांडा शुड बिकम क्लोज वेरी सून, सो ही वांट्स टू टेस्ट फर्डिनेंड फॉर द लव ऑफ मिरांडा. तो वो बोलता है कि आई थिंक दैट यू हैव कमिटेड सम रॉन्ग. मिरांडा, वाई स्पीक माई फादर सो अनजेंटली. अनजेंटली का मतलब रूडली. अब मिरांडा शॉक्ड हो गई कि उसके फादर क्यों इतना रूडली बात कर रहे हैं फर्डिनेंड से, क्योंकि फर्डिनेंड तो बहुत ही ब्रेव यूथ है और ट्रूथफुल भी लग रहा है, और अब तक जो स्टोरी बताई है वो भी करेक्ट है, क्योंकि टेम्पेस्ट तो मिरांडा ने खुद देखा था. आई सॉ द फर्स्ट दैट आई एवर साइड फॉर. उसने बोला कि दिस इज द फर्स्ट यूथ whom I have developed feelings for, and I am feeling pity for this man who has lost his father. Pity moved my father to be inclined my way. और अपने फादर से भी रिक्वेस्ट कर रही है कि प्लीज शो pity and mercy to this man. Ferdinand, oh if a virgin, virgin का मतलब यहाँ पे है unmarried girl. So if you are an unmarried girl and if your affection not gone forth, का मतलब क्या हुआ कि if you are not in love with somebody else, I'll make you the queen of Naples. I will marry you and you will become the queen of Naples. तो अब तक फर्डिनेंड को ये कंफर्म हो गया है कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है, और फाइनली फर्डिनेंड को ही सेकेंड किंग डिक्लेयर किया जाएगा. तो ये यहाँ तक आप टिक लगा लीजिए, और ये आपका हो गया है पार्ट नंबर 6 complete. So in the next video I will start from part number 7, which will be the last part of this play. As you can see that there are only 2.5 pages left for the scene to come to an end. The scene is very very important, because in the beginning of the scene you find father-daughter conversation, and then the interaction with Ariel and the whole story, and then interaction with Caliban, and then finally Ferdinand's interaction with Miranda, and then how when the scene will end you will see how Prospero will take Ferdinand into his custody. Okay.